حضرت کا شعر آیا ہے۔ جاور صاحب جنہوں نے ایک اپنی کم علمی کا بالکل صاف آئینہ سامنے رکھ کر دیکھ لیا، خود بخود ایک فتویٰ انہوں نے لکھ دیا۔ ایک فتویٰ کہنا کیسا ہے، فتویٰ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو، اب نام فتویٰ کا دیا کروں کیا؟ تو فتوے کی شکل میں انہوں نے جو ناپاک کوشش کی اور سرکار تاج الشریعہ سے ٹکرانے کی جو انہوں نے کوشش کر لی تھی، خود ساختہ فتویٰ ہے، میں ہندوستان میں نہیں کر سکتا، انہوں نے خود ساختہ فتویٰ لکھا، خود ہی مسئلہ سنا، خود ہی مسئلہ بنایا، خود ہی لکھ دیا۔ اور اس پر ابھی میں گزارش کرتا ہوں سید صاحب سے کہ وہ حضرت تشریف لائیں تو منقبت ضرور سنائے، دیا 3 موقع میرے اختر نے سماعت کا، دیا 3 موقع میرے اختر نے سماعت کا۔ یہ اگر آپ کے دل میں اپنے کون ہے تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہاتھ اٹھائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی مرید ہوں، سبحان اللہ، میرا بھی ہاتھ بلند ہے۔ اسٹیج والوں کے لیے بھی کہنا نہیں ہے حضرت، سب شامل ہیں، جتنے ہیں سب نیچے کر لیں، سب تاج الشریعہ کے عاشق۔ اچھا مجاور کے کتنے ہیں بتائیے، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھا دو مجاور کے۔ ارے کہاں اما میاں تم تو عاشق ہو، تم کہاں اٹھا رہے ہو؟ مجاور کو نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا حضرت، یہ شہرت کے لیے کیا گیا ہے، اپنی شہرت کے لیے تم نے اتنا بڑا کام کر لیا، ذلت و رسوائی پیدا کر لی۔ مجاور صاحب تمہیں سنابلی کے مسئلے پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم لوگ تمہیں سنابلی کے مسئلے پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم لوبان سلگاتے، اگربتیاں سلگاتے، چادریں چڑھاتے، جو تمہارا کام تھا۔ اور اگر اتنی شہرت کی ضرورت تھی تو سچے غلام مصطفیٰ بن جاتے، شریعت پر عمل کرتے، تاج الشریعہ کے پاس آ جاتے۔ تم نے یہ کام کیا نہیں، تم نے شہرت کے لیے ایک غلط کام کر دیا، خود ضابطہ فتویٰ لکھ دیا، خود اپنی شہرت کے لیے اپنی طرف سے کام کیا۔ بتاؤ فتویٰ کیا اس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ ایک فریق کی بات سن لو فتویٰ دے دو، کہاں کا قانون ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ مجاور صاحب آؤ اور بتاؤ، اگر سچے ہو تو مسئلہ صاف کرو، آؤ بتاؤ کس بنا پہ تم نے فتویٰ دیا؟ تمہارا اگر یہ فتویٰ سچا ہے تو سامنے آؤ، دل میں چھپ کر بات نہیں کرتے، سامنے آ کر بات کرتے ہیں۔ ہم خواجہ کے دیوانے ہیں، داتا غریب نواز کے دیوانے، اجمیر آئیں گے، تم میں ہمت نہیں، روک لو، تم ذرا کہیں باہر نکل کے دکھا دو، تم آؤ کہیں۔ تم سنابلی کا مسئلہ نہیں جانتے تھے، ایک کی محبت میں اتنی بڑی بات کر گئے۔ تم تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو، میرے پیر و مرشد نے 3 موقع دیا، 3 موقع دیا، آؤ بات کرو، آؤ بات کرو، سامنے آؤ، مسئلے کو صاف کرو۔ کہاں تھے تمہارے سنابلی؟ کہاں تھے ادریسی؟ کہاں تھے یہ گالی باز لوگ؟ کہاں چلے گئے تھے جن کے دامن میں سوائے بد کلامی کے کچھ نہیں، جنہوں نے ممبر رسول کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا، جن کو کچھ نہیں آتا سوائے گالی کے؟ یاد رکھو تاج الشریعہ نے 3 موقع دیا۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، اس مسئلے پر میں نے قسم ہے رب کعبہ کی ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، 11 مرتبہ سنابلی کو فون کیا ہوں، 11 مرتبہ ہندوستان میں بول رہا ہوں، یہ بات اس تک ضرور پہنچے گی، اور نہ پہنچے تو پہنچا دینا۔ میرا نام سید اشرف امان حسین نوری ہے، نام بتا دینا، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میں نے عرب سے انٹرنیٹ کے نمبر سے فون کیا 4 مرتبہ، کہاں ہے حضرت؟ بھیا تو ابھی ہے نہیں، پروگرام میں ہے۔ میں نے کب لوٹیں گے؟ انشاءاللہ صبح آ جائیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے گفتگو کرا دیجئے گا، کل میں ظہر بعد فون کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیا، کہاں ہے حضرت؟ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا دیتے، بتاتے سید صاحب نے فون کیا، حضرت کے آرام میں خلل ہوگا۔ جواب ان کا ہے، کوئی برہان عصمتی ان کا مرید یا
शागिर्द कोई है, बुरहान रजा आसमती, ये उनका भाई नहीं, उनका कोई है, उससे मेरी बात हुई, उसने ये जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैंने सुबह फजर के फौरन बात फोन कर दिया। क्या फजर पढ़ने तो हजरत उठे ही होंगे, या नमाज से भी गुमशुदा है, वो भी खा जाते हैं। तो मैंने कहा ये फजर बात तो कोई भी उड़ जाता है। मैंने फौरन फजर के बाद इंडिया टाइम से फोन किया, हजरत से बात करा दीजिए, हजरत वजीफा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा माशाअल्लाह, 15 मिनट बाद फोन करता हूं। आधे घंटे बाद फोन किया, कहाँ है हजरत? हजरत अभी बाहर निकले हैं। मैंने कहा बाहर चले जाइए, मेरा फोन चालू रखिए, बैलेंस मेरा जा रहा है, मुझे जरूरी बातें करनी है। कहा हुजूर क्या मसला है, मुझसे बता देते, मैं पेश कर दूंगा। मैंने कहा तुम्हारी अपनी औकात क्या है बताओ, तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है बताओ, ये मसला इतना बड़ा है कि तुम्हें बताओ तुम समझ पाओगे? तुम पहले बताओ तुम हो कौन, तुम्हारी औकात हैसियत क्या है, फिर मैं तुम्हें मसला बताता हूं। या मेरी सीधा सनाबिल से बात कराओ। नहीं कराई। फिर 3 दिन बाद मैंने रात में फोन किया, सनाबिल मौजूद है, उसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी। 1 मिनट में खामोश था, फोन चालू था। उसके बाद मैंने हेलो कह के बात आगे बढ़ाई, तो फिर कहाँ है? हजरत तो नहीं है, वो वहां मौजूद है। मैं इस बात का खुद गवाह हूं, क्योंकि मैं उसकी आवाज पहचानता हूं, मैं उसकी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैंने खुद सुना है, उसकी आवाज वहीं मौजूद बोल रहा है, और उसने कह दिया कि ये वो यहां नहीं। मैंने कहा स्पीकर ऑन कर, और मैं जो कह रहा हूं जितने लोग बैठे हैं सबको सुना। मैंने इस मसले पर मुहद्दिस कबीर से खुद बात की, सलमान मियां से खुद बात किया, मौला बसीरुल कादरी से खुद बात किया, इनके अलावा सैयद हुसैनी मियां साहब किबला से मैंने खुद बात किया। 11 अजीम उलमा से मैंने बात करने के बाद सुनाबिल को, सनाबिल नहीं सुनाबिल, सैयद साहब ने सनाम दिया, सुनाबिल को मैंने फोन किया कि बात करें, मसला क्या है बताएं। आखिर मुझे भी तो समझ में आना चाहिए, तब तो बताऊंगा क्या बात है। कल के कोई पूछ ले क्या बताऊं, लोग कहते हैं आप क्या कहते हैं, किसकी तरफ है? मैंने कहा भाई हक की तरफ है, जहां हक वहां सब। फोन नहीं उठाया, बात नहीं किया, स्पीकर ऑन करवा के मैंने अपनी सारी गुफ्तगू रख दी, और फिर मैंने कहा फोन काट, मैं अपने पर्सनल नंबर से फोन करता हूं। अपने पर्सनल नंबर से 4 मरतबा फोन करके कहा ये मेरा अरब का नंबर है, ये मेरा इंडिया का नंबर है, वो भी नंबर दिया। जब बात करनी हो, जब आपके हजरत आ जाए, मुझे 1 मरतबा मिस कॉल दे देना। आज तक मिस कॉल नहीं आया। 6 माह गुजर चुके हैं, 6 माह गुजर चुके हैं। जब मसला आता है कि आओ आज डेट दी गई, तो कहीं बाहर चले जाते हैं, कभी कोई नया मसला खड़ा कर देते हैं, कभी यहां डेट दी गई कि इस दिन फैसला है, आ जाओ बैठ जाओ, तो खुद अजमेर पहुंच जाते हैं फैसला सुनवाने। हाँ, और फिर उनका वो पाला हुआ कुत्ता बोरिंग है, फिर उनका वो पाला हुआ कुत्ता कहता है कोई काजी नहीं, कोई काजी नहीं, कोई काजी नहीं, और अजमेर से फैसला फतवे की सूरत में हो जाएगा। तो सैयद साहब सही फरमाते हैं, अजमेर में कहते हैं दादा बैठे हैं जो फैसला करेंगे। कौन करेगा फैसला? जब कोई काजी ही नहीं तो कौन करेगा फैसला? उनके नजदीक। हमारे नजदीक तो काजी यहां मौजूद है, हमारे नजदीक तो काजी यहां मौजूद है। हम बगावत नहीं करते। मामला सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। कल तक ये बुजुर्गों के पास आते थे, ताजुश शरिया के नाम पर इन्हें शोहरत मिली है, ताजुश शरिया के नाम पर, उनके नाम के टुकड़े पर ये पलते रहे हैं। कल तक बाप बेटे जहां तक ये फित्तीन जाते थे, वहां वहां ताजुश शरिया, बरेली की बात अजहरी मियां करते थे। इनको जो शोहरत मिली है ये ताजुश शरिया के नाम पर मिली है। हजरत इनको जो शोहरत मिली है ताजुश शरिया के नाम पर मिली है। जहां जाए, जिन लोगों ने इन्हें बुलाया है, जिन लोगों ने रुपया खर्च किया है इनके प्रोग्राम को कराने के लिए, वो ताजुश शरिया की मोहब्बत में करते थे। वो ये सोचते थे ये पासबान मसलके आला हजरत है, वो ये सोचते थे ये खादिम मसलके आला हजरत है, वो ये सोचते थे ये आशिक ताजुश शरिया है, वो ये सोचते थे ये सैदाई ताजुश शरिया है, वो ये सोचते थे कि ताजुश शरिया की बात पर अमल करने वाले हैं, वो ये जानते थे कि ताजुश शरिया के फतवों पर अमल करने वाले हैं। कल तक यकीनन ये बुजुर्गों के मानने वाले थे, लेकिन आज मामला सिर्फ यहां आकर बैठ गया कि इन्हें खुद बुजुर्ग बनने का शौक चढ़ बैठा है। अब ये खुद बुजुर्ग बनना चाहते हैं, अब ये खुद फैसला करना चाहते हैं, और इसी मामले पर इन्होंने पूरा मामला खराब कर दिया। इन्होंने पूरा
एकदम से मामला एकदम से गोड़ के रख दिया, अपना खुद का खाना खराब कर लिया, अपना खुद का पानी खराब कर लिया, अब कोई पूछता नहीं, कचड़े के भाव फिरते हैं। याद रखो, मेरा किसी मुजावर से कोई ताल्लुक नहीं है और किसी सुनाबिली से कोई ताल्लुक नहीं, किसी इदरीसी से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक इनका बरेली से रिश्ता था, फकीर का इनसे रिश्ता था, अब इनका बरेली से रिश्ता नहीं, मेरा इनसे रिश्ता नहीं। जो लोग इस चक्कर में पड़े थे कि हजरत क्या कहते हैं, मैंने ये कह दिया। और रहा सवाल सैयद का कि वो सैयद है मुजावर साहब। पहले मुजावर साहब को तो ये चाहिए वो ये फतवे पे चले आए, इस मसले पे चले आए, उनको तो खुद अपनी जगह पे फतवा देना चाहिए। मस्जिद में औरतें बैठती हैं, बेवजह के काम होते हैं, फिल्म स्टार को एंट्री मिलती है, नाचने गाने वालों को एंट्री मिलती है, बेवजह की कव्वालियां होती हैं, ऐसे बेहूदे कलाम पढ़े जाते हैं जो किसी के समझ नहीं आते। दाढ़ी मुंडा कलाम पढ़ता है तो तुम वो ठीक करो, मां मियां तुम वो तो ठीक नहीं कर पा रहे, इतने बड़े मसले पे बोलने चले आए। और उसके बाद मुजावर साहब अपने गिरेबान में आपने झांका नहीं, उंगली उठा दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने यूं एक उंगली उठाई, तीन आपकी तरफ थी, ये तीन आपकी तरफ थी, ये तीन आपकी तरफ थी, आपने सिर्फ एक पर नजर रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी सुन्नियत आपके तीन पर नजर रखे हुए है। और रहा सवाल आपकी सियादत का, तो एक और मसला ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अवाम जब मसला सुनती है तो कुछ का कुछ कह जाती है। यहां इख्तिलाफ उनकी सियादत पर नहीं है, यहां मसला उनके सैयद होने या न होने का नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो सैयद है या नहीं है, या उनकी इस मसले पर बुराई की जाए, ये कहा जाए कि वो सैयद नहीं। देखो यकीनन अगर कोई सैयद है या नहीं उसने कह दिया तो वो उसे आप मान लो, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं, हमारे इमाम ने हमें यही सिखाया है, तो हम उन्हें सैयद मानते हैं, उनका एहतराम सियादत की बुनियाद पर करते हैं। आज भी मैं ये बात एकदम खुलकर कह रहा हूं कि किसी की भी सियादत का एहतराम किया जाएगा, वो सैयद साहब की आदत का नहीं किया जाएगा। सैयद साहब की आदत बुरी हो गई तो उसका रद्द किया जाएगा, उनकी सियादत का एहतराम किया जाएगा। तो यहां मसला उनके सैयद होने न होने से नहीं है। अगर किसी ने बहाने के बिना पर यह आड़ बनाया है कि सैयद साहब है, तो साहब आप अपना मुंह एक बार फिर गटर के पानी से धुल लें और उसके बाद बात करें। सियादत का कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने जो बुनियाद की बातें कर दी और अपनी कम इल्मी दिखाई, इस मसले पर है, इसके सिवा कुछ नहीं। बस यही मेरी बात थी। सरकार की बात करो, इसकी की बात करो, ताजुश्शरिया की बात करो, उनकी बात सुनो। आज के वक्त में हमारा अमीर, हमारा सालारे अहले सुन्नत हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा खां अजहरी है। हम इनके मानने वाले हैं। इनका जो हुक्म, कोई कादरी हो, चिश्ती हो, रजवी हो, अशरफी हो, कोई भी हो, ताजुश्शरिया किसी रज़वियों की जागीर नहीं, अशरफियों की जागीर नहीं है, कादरियों की जागीर नहीं है। मेरे ताजुश्शरिया की कासाने में हर रंग, अशरफी भी है, रज़वी भी है, कादरी भी है, चिश्ती भी है। तो ताजुश्शरिया का जो सामियाना है वो सबके लिए है। सब ताजुश्शरिया को मानते हैं, सब उनके फतवों पर अमल करते हैं। मानते रहो, उनको मानते रहो, उनके पीछे चलते रहो। आप गुजरात वाले हो, यहाँ हुजूर काज़िए अहले सुन्नत सैयद सलीम बापू के पीछे चलो, इनके कॉल पे अमल करो। कोई बात आए, कोई मसला पड़े तो अपने काजी से पहले पूछो, यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से ना पूछो, पहले अपने काजी से पूछो, जो इनका हक हुक्म हो उसे मान लो। कोई सैयद साहब हो, गैर सैयद हो, वो अलग है। और हम उसे सैयद, मैं तो उसे सच्चा सैयद मानता ही नहीं जो अपने नाना के आशिक का वफादार ना हो। अपने नाना के आशिक का वफादार ना हो वो असली सैयद हो ही नहीं सकता। बस मैं यही कह के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर आका टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाते हैं बाजार मुस्तफा में, इस सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते।